بہت خوش ہوں کہ آپ یہاں آئے اور میرے دوست بن گئے۔ مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے بیٹا تم سے واقف ہو کر۔ آپ کے پاس معلومات بہت زیادہ ہیں۔ اتنی ساری معلومات آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے بعض معلومات ان لوگوں سے حاصل کی جو قابل اعتماد تھے، اور بعض باتیں میں نے خود پیغمبر اسلام سے سنی ہیں۔ میرے لیے کچھ اور بیان کریں۔ یمن کے تجارتی قافلے مکے کے کنارے سے گزرنے کے بعد ایک لمبے درے میں داخل ہوتے تھے جس کو وادی القرا کہتے ہیں۔ اس سے آگے سرسبز و شاداب علاقے پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک شہر یثرب کا شہر تھا۔ یثرب بعد میں مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس شہر میں اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے رہتے تھے۔ اوس اور خزرج کے ساتھ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے رہتے تھے، جن کے نام بنی قریظہ، بنی نذیر اور بنی قینقاع تھے، جو مہاجر تھے۔ ہر سال یثرب کے کچھ لوگ حج کے مناسک میں شرکت کے لیے مکہ جاتے تھے۔ آ گئے؟ رات کے اس پہر تک کہاں تھے اسد؟ کہاں تھے تم؟ میں محمد ابن عبداللہ کے پاس گیا تھا۔ میں ذرا بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا رہا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قریش کے لوگ ہمارے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو بھی محمد کے ساتھ گفتگو کرتا ہے وہ قریش کی بے توجہی سے دوچار ہو جاتا ہے؟ یہ بات مجھے معلوم ہے، لیکن نبی کی باتیں اتنی دلچسپ اور خوبصورت ہیں کہ میں ہر قسم کا خطرہ مول لے کر ان سے ملنے جانے کے لیے بےتاب ہوں۔ سچ پوچھو تو میرا دل چاہتا تھا ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں۔ لیکن اگر یہ شخص جس طرح سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ خدا کے نبی ہیں، تو کیوں قریش والے ان پر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ بہت سے قریشی بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو نبی سے دشمنی کرتے ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ اپنا مقام کھو نہ دیں۔ مگر تم نے ہمارے شہر کے یہودیوں سے نہیں سنا ہے جو کہتے ہیں آخری نبی ایک دن یثرب جائے گا اور وہ ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کے سپرد کر دیں گے؟ تم سچ کہہ رہے ہو۔ میں نے بھی یہ بات کئی بار اپنے شہر کے یہودیوں سے سنی ہے۔ اگر یہودی سچ کہتے ہیں تو وہ کیوں ان کے پاس نہیں آئے ہیں تاکہ ان کو یثرب آنے کی دعوت دیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت محمد اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابراہیم کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا اسحاق۔ چنانچہ بنی اسرائیل اور یثرب کے یہودی ان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ آخری نبی اسحاق کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب جب کہ انہوں نے دیکھا محمد اسماعیل کی نسل سے ہیں، وہ ناراض ہو گئے۔ لیکن محمد کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے۔ ٹھہرو، میں ساتھیوں کو جگا دوں تاکہ ہم سب مل کر نبی کے پاس چلے جائیں۔ رکو، میں ان کو جگا دوں۔ ٹھیک ہے، جا۔ ابھی اٹھاتا ہوں۔ پاکیزہ ہے خدا وند بزرگ و واحد، جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ہم رسول خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی ہمسر قرار نہ دیں، چوری اور برائی کا ارتکاب نہ کریں، ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، برے کام نہ کریں اور نیک کاموں سے روگردانی نہ کریں، اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ ماریں۔
ये करार पाया कि यसरब के मुसलमान 13 ज़िलहिज्जा की आधी रात को अक़बा में हज़रत के साथ मुलाकात करें। वो रात आ पहुंची। हाँ, ये तो बताओ वो मेरा मखसूस कपड़ा कब तैयार होगा? बेकार काम करने और सिर्फ अपना पेट भरने की बजाय मेरा कपड़ा कब तैयार होगा ये सोचो। बताओ मेरा कपड़ा कब तैयार होगा? सब पुरसुकून रहो और अपनी जगह से ना हिलो। दुश्मन को हमारी तरफ मुतवज्जह नहीं होना चाहिए। अभी पैगंबर के चचा अब्बास आप लोगों से बात करेंगे। मैंने सुना है तुम लोगों ने पैगंबर को अपने शहर में आने की दावत दी है। तुम्हें मालूम है कि बनी हाशिम के दरमियान आपको खुसूसी मकाम हासिल है। हम उनके दिफा में जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। क्या तुम लोग इस बात पर तैयार हो कि पैगंबर की हिमायत में इसार से काम लो और कभी आपको आपके दुश्मनों के मुकाबले में अकेला ना छोड़ो? अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी दावत को संजीदा लेंगे, वरना बेहतर है कि हुजूर और मक्के के मुसलमान अपने शहर में बैठे रहें, ताकि ऐसा ना हो अहद शिकनी की वजह से तुम्हारी सरजनिश की जाए और तुम अज़ाब इलाही के मुस्तहिक करार पाओ। हम जंग का तजुर्बा रखने वाले बहादुर लोग हैं, ये सब जानते हैं। अगर अहद कर लें तो जान की बाजी भी लगा देते हैं। या रसूलल्लाह, जिस तरह हम अपने बीवी बच्चों और नामूस का दिफा करते हैं, दुश्मनों के मुकाबले में आपकी पासदारी करेंगे। हम आपकी खातिर कुरैश और यहूदियों के साथ जितने भी हमारे मुआहदे और ताल्लुकात हैं उनको नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर आप हमारे शहर में आएंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि कैसे यसरिब के लोगों ने मोहम्मद के साथ बैत कर ली है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि ऐसा ही है। वो मुसलमानों को अपने शहर और घरों में जगह देने का इरादा रखते हैं। वो मोहम्मद को अपने घर में जगह देंगे? हाँ। रफ्ता रफ्ता हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर मोहम्मद और उसके मानने वालों को यसरब में पनाह हासिल हुई तो मक्के को नुकसान पहुंचेगा। ये खतरा हमारी नाक के नीचे पल रहा है। अबू सुफियान उठो और कुछ मुसल्ला अफराद के साथ अब्दुल्ला इब्ने उबय के पास चलें ताकि इस नाशाइस्ता अमल के बारे में उससे जवाब तलब करें। उठो अबू सुफियान। क्या कह रहे हो अबू लहब? तुम चाहते हो कि लोग ये कहें कि मक्का वालों ने माह हराम में काबे के हुज्जाज के खिलाफ तलवारें उठाई हैं? तो अपने लोगों से कहो तलवारें छोड़कर चलें। ये सच है कि मक्का तलवार की जगह नहीं ले सकता, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर है। कह रहे हो अबू सुफियान कि यसरब के लोगों ने मोहम्मद के साथ बैत की है? ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि वो मेरे मशवरे के बगैर ऐसा काम करें। और अगर मुझसे मशवरा करेंगे
तो मैं किसी भी हाल में ये बैत होने नहीं दूंगा। कल रात के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? कल रात यहाँ क्या कुछ हुआ? मैं रात गए तक जागता रहा और अपने सारे तिजारती लेन देन का जायजा लेता रहा। फिर मैं बाहर चला गया और मैंने देखा कि सब बहुत आराम से सो रहे हैं और मेरे कारिंदे आंखें खोलकर हर हरकत की निगरानी कर रहे हैं। फिर मैं अपने खेमे में वापस आ गया और आराम की नींद सो गया। बेवकूफ आदमी, यस्रब के काफले के 70 लोगों ने अक़बा में मोहम्मद से मुलाकात करके बैत कर ली है और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं। उसके साथ क्यों बैत करनी चाहिए? औस और खजरज के इमायदीन इस बात के दर पे हैं कि मुझे यस्रब का हाकिम बना दें। मैं यस्रब के हाकिम के तौर पर आपको इस बात का इत्मीनान दिलाता हूँ कि ना किसी किस्म की बैत, ना मुआहिदा था, ना है। मैं हुबल की कसम खाता हूँ कि ऐसा वाकया बिल्कुल रूनुमा नहीं हुआ है। अगर ऐसी बात है तो फिर वो 70 लोग सुबह सवेरे मक्का छोड़कर यस्रब क्यों चले गए? वो तुम्हारे काफले के साथ रवाना होने के लिए क्यों नहीं रुके? बताओ, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या तुम इस तरह औस और खजरज पर हुक्मरानी करना चाहते हो? नालायकों, मैं सबको तहे तेह कर दूंगा। मैं सबको नाबूद कर दूंगा। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ कि बैठकर ये देखता रहूं कि मोहम्मद और उसके पैरोकारों की तादाद में रोज बाय रोज क्यों इजाफा होता जा रहा है। आओ चलें अबू लहब। अभी इसी वक्त यस्रब के उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक दस्ता भेज दो जो भाग गए हैं। चलो अबू लहब, चलो। हाँ, चलो। यस्रब के बाशिंदों ने रसूल खुदा के साथ जो मुआहिदा किया, उसने मुशरकीन मक्का को सख्त परेशान कर दिया। इस नौ बुनियाद दीन की तौसी से कुफ्फार मुकम्मल तौर पर बेबस और कमजोर होकर रह गए। बाकी लोग हमारे हाथ नहीं आ सके। हम सिर्फ इसी एक आदमी को पकड़ने में कामयाब हो सके। लगता है ये उनसे पीछे रह गया था और उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था। ये बताओ, तुम साद इब्ने इबादा नहीं हो? तुमने किस बना पर मोहम्मद के साथ अहद किया? मैं जिससे भी चाहे अहद कर सकता हूं। इसका तुमसे क्या ताल्लुक है? किसी को हक नहीं है कि हज के मौसम में मक्का आए और कुरैश के दुश्मनों के साथ गठजोड़ करे। गोया तुझे नहीं मालूम है कि मैं कुरैश का सरदार हूं। अबू लहब, इसको कोड़े के जरिए समझा दो कि जिस चीज का ताल्लुक मक्के से है उसका ताल्लुक अबू सुफियान से भी है। तुम मेरे साथ ये काम नहीं कर सकते हो। मैंने मक्के में मुतअम बिन उदई के साथ मुआहिदा किया है कि यस्रब में उसकी जानो माल की हिफाजत करूं और वो भी मक्के में मेरी जानो माल की हिफाजत करेगा। अगर तुम लोग मुझे कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मुतअम भी बेकार नहीं बैठा रहेगा। मुतअम? फिर वही मुतअम। उसने शाब अबू तालिब के मामले में भी लोगों को अहदनामे के बारे में वरगलाया था। अगर ये पस्त आदमी सच कह रहा है तो मुतअम भी रास्ते में ही होगा ताकि आकर हम पर दुश्मन तराजी करे। साद का कहना सही है। उसने मुतअम के साथ इस तरह का अहद कर रखा है।
ہم نے اتنی سستی دکھائی کہ تمام مسلمان یثرب کی طرف بھاگ گئے۔ اس وقت صرف محمد اور علی ابن ابی طالب سمیت کچھ لوگوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان مکے میں نہیں رہ گیا ہے۔ ہمیں اسی ابتدا میں ان سب کو مار دینا چاہیے تھا۔ اب ہمارے ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے۔ تم لوگ اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ تمام قبائل ہمارے بارے میں بدظن ہو چکے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کا دین خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اب کوئی ہمارا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے۔ اگر محمد کے قدم، صرف محمد کے قدم یثرب میں پہنچ جائیں تو ہمارے قافلے شام کے راستے میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان بھی بیکار نہیں بیٹھیں گے۔ بہت ہو چکا، ہم نے بہت لاپرواہی سے کام لے لیا ہے۔ محمد کو قتل کر دینا چاہیے۔ يا حبيبي